how the session is and what are we going to talk about. So this session is brought to you by the biggest creator platform, Instagram. And in this, we are going to deep dive into how platforms like Instagram are supporting budding creators across, different niches and, different regions to become even bigger. We are in conversation with Bihari Ladka, formerly known as Naveen Singh today. He's 18 and he's making the whole Instagram dance to his reels and videos and such comedy videos that he makes. We all get cracked up. Then our other guest is Vaishnavi. Also, she is a fashion content creator and talks about how you could actually manage affordable fashion, which is very, very important. We are in conversation with Niharika Pandey from the team of Instagram. Very, very excited to begin and deep dive into this. They are both the awardees of the Instagram 25 under 25 emerging creator. Congratulations, Naveen and Vaishnavi. Welcome, Niharika. Also, guys, just a quick heads up, this session will be translated in the chat. This is a totally, we love that, we're translating it from Hindi to English. The translation will be available in the chat by Harshita. And just a quick heads up, we'll be taking the Q&A towards the end. So feel free to put up the questions in the Q&A chat in the box. And, you could tag, share us, and, you could put your comments in the chat. So excited to begin. Welcome all of you. I'll take a leave and, I'll be back in the Q&A time. Great. Thanks, Nandini. Hi, everyone. I hope I'm audible and you can see us. So just a quick introduction. मेरा नाम निहारिका है. मैं Instagram team से हूँ and like Nandini mentioned, this is a very fun session. तो हम इसको हिंदी, English, like basically I'm with two fun creators. So I want to make sure this is very, very, it just flows in a very easy way. So just to kick off, because I know हमारे पास time भी limited है, I will request both these creators and like Nandini mentioned, ये दोनों हमारे Instagram 25 under 25 है from last year, which means accounts that are very emerging, very exciting, people you should know. But just in case कोई इनको नहीं जानता अभी, तो I'm going to give them first the opportunity to introduce themselves. तो आप दोनों बताइएगा a little bit about yourself, about आप अगर कोई आपका अकाउंट नहीं जाने तो आप उनको बताइए आपका अकाउंट में क्या हो रहा है, what's the content like, and a little bit about your journey. तो वैष्णवी पहले आपसे शुरू करते हैं. Why don't you tell everybody about you? Yeah, thank you so much, Niharika, for having me in this panel. So let's start about my छोटा सा introduction. So my name is Vaishnav Nalbalwar and this my Instagram journey started back in 2019. तो basically मैं भी एक engineer हूँ and हर engineer different field में वो क्या माहिर होता है instead of engineering. तो वैसे ही मेरी लाइफ है. मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट करा हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में. तो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम फैशन कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम. तो जब मैंने 2019 में ये स्टार्ट किया था तो ऑलवेज एंड ऑलवेज मेरे माइंड में यही थॉट रहा है कि मुझे ऐसा कोई कंटेंट क्रिएट करना है जो कि लोग रिलेट कर पाए और रिक्रिएट कर पाए. उनको ऐसा लगना चाहिए अरे हाँ ये क्लॉथिंग पीस मेरे भी वार्डरोब में है, मैं भी इसको इस स्टाइल में वे में स्टाइल कर सकती हूँ या फिर DIY कर सकती हूँ या कुछ हैक्स कर सकती हूँ. तो उसी अकॉर्डिंग जब इंस्टाग्राम पे IGTV फीड पोस्ट एंड जब वीडियोज एंड ऑल वो सारे ऑप्शन थे तब मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया था. सो राइट तो अभी रील्स एंड ऑल एवरी सारी चीज़ें आ गई है. तो अब रील्स एंड स्टोरीज एंड बहुत सारे इंस्टाग्राम पे फीचर्स ऐसे अवेलेबल है जिसके कारण आप आपका टैलेंट आपका कंटेंट शो कर सकते हो आपको जो भी चीज़ पसंद है उस चीज़ में. तो बेसिकली मेरा जो नीच है वो फुल्ली फैशन है एंड कभी कभी ब्यूटी एंड जो डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती है वो भी छोटे से ब्लॉग्स एंड ऑल वो ऐड करती हूँ. उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी एक बडिंग क्रिएटर हो और आपको भी ऐसे कंटेंट या फिर सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आई विल से कि जस्ट बी योरसेल्फ. आपकी जो भी क्रिएटिविटी है वो रील्स के थ्रू स्टोरीज के थ्रू आप अपने शोकेस कर सकते हो. एंड आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके पास बस मोबाइल फोन एंड यू आर डन. आपको दूसरे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आपको बस प्लेन आपके पास ऑब्वियसली वॉल होती है किसी के घर में. बैग बेटर है कि आप अगर घर के बाहर शूट करते हो तो वो तो लोगों को और भी अच्छा लगता है.
बट अगर आप फैशन एंड ऑल में हो तो आप समझ सकते हो, वो तो घर में भी शूट हो सकता है, बाहर भी शूट हो सकता है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, बस यही। वैष्णवी काफी बातें करनी है, सो आई एम गोना कट यू लिटिल बिट ओवर देयर, क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रेट इनटू लाइक द मीट ऑफ द कन्वर्सेशन की और क्रिएटर्स के लिए क्या एडवाइस है। बट बिफोर वी गो देयर, नवीन आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, टेल अस अबाउट, पहले तो ये मिथ बस्ट करिए कि बिहारी लड़का है कहाँ पे, वैसे बिहार में है कहीं और है? नहीं, थैंक यू सो मच निहारिका फॉर हैविंग मी। और सबसे पहले तो मैं बिहार का हूँ, बॉर्न वहां पे है मेरा, बट मैं अभी गाजियाबाद यूपी में रहता हूँ सबसे पहले। और मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? स्टार्टिंग में पहले डांस करता था। स्टार्टिंग में मैं डांस करता था और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन में भी अंदर अंदर धीरे धीरे घुसा। और सबसे पहली बात तो मैं क्या कहते हैं, क्या हुआ? वी कैन हियर यू, वी कैन हियर यू। जी जी जी। हाँ, तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे यूपी में रहता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है क्या कहते हैं कि बिहार से भी हूँ। स्टार्टिंग मैंने वहीं से करी थी अपने कंटेंट क्रिएशन की। मैं डांस भी करता हूँ और एक्टिंग भी करता हूँ, सब चीज करता हूँ। आप लोग मेरी आईडी में जाके दे सकते हैं, बिहारी लड़का। और मैंने बिहारी लड़का नाम इसलिए रखा कि मैं बिहार से हूँ। और थोड़ा वो भी पता है ना कि बिहार के लोग यूपीएससी ही क्रैक नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं, ये भी सबको पता चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपना बिहारी लड़का नाम रखा। और बाकी आगे आपको इस जर्नी में बताता हूँ कि कैसे कैसे हुआ, वो निहारिका मैम बताएंगे क्या कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक आपने मेरे को पहले भी बोला था कि ये एक और आपका एडवांटेज था बिहारी लड़का रखने के लिए, क्योंकि बिहार लोग सर्च करते रहते हैं और आपका नाम सबसे पहले आता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी कि कैसे अपने आप को ऊपर दिखाएं सर्च पे। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी आप दोनों के अकाउंट में, इसकी आपकी कम्युनिटी आपसे कितनी जुड़ी हुई है। मतलब जो कमेंट्स आते हैं, जो लोग आते हैं, मतलब बिल्कुल दे गेट वेरी पर्सनल, वेरी बहुत आपके दोस्त एक्चुअली ऑलमोस्ट बन चुके हैं। बट ये अकाउंट्स बड़े हैं, लाइक यू बोथ हैव क्रिएटेड बिग फॉलोइंग्स एज वेल। सो नवीन, अगर आप बताएंगे आपका रिलेशनशिप कैसा है अभी, कौन लोग हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं, कैसे आपको कमेंट्स आते हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा बना, वो कम्युनिटी की जो इंस्टाग्राम में है उसमें सबसे खासियत आपके अकाउंट में क्या है? सबसे बड़ा जैसे निहारिका ने बोला कि जैसे बिहारी लड़का नाम रखा है तो बिहार के लोग जैसे बिहार सर्च करेंगे तो मेरा आएगा, तो एक बिहार का कम्युनिटी तो है ही। बट धीरे धीरे जैसे वीडियोस डालने लगा उसके बाद लोग भी काफी सारे कनेक्ट हुए, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से और पाकिस्तान से भी थोड़े बहुत जो मैसेज करते हैं, जो बिल्कुल कनेक्ट होते हैं ना। जैसे एक तो मैं फैमिली कंटेंट बनाता हूँ सबसे पहली बात तो, हाँ। जिसमें मम्मी होती है, दादी होती है, भाई होते हैं, दोस्त, मतलब पूरे फैमिली कंटेंट तो सबके साथ देख सकते हैं, तो उसमें तो दिक्कत नहीं है। फिर उससे मतलब धीरे धीरे हम लोग कनेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि यार तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी हो, कहता स्माइल करती है, मेरी मम्मी भी ऐसी है। दादी, मेरी दादी है नहीं बट आपकी दादी को देखकर ऐसा लगता है कि यार मैं कनेक्ट करता हूँ, मेरी दादी है। तो वो धीरे धीरे कनेक्शन बनता गया, फिर लोगों से कनेक्शन बनता गया। तो ऐसी एक तो रीच बढ़ने लगी। इंस्टाग्राम में सबसे पहली बात तो वो ये कि सबको ही रीच चाहिए, सबको ये तो रीच नॉर्मल, मतलब चाहिए, रीच चाहिए बिल्कुल, और कि वीडियो लोगों को पसंद आए। तो ऐसी कभी कभी जैसे मैं कभी वीडियोस नहीं डालता, कभी कभी ऐसे कुछ दिक्कत हो आती है, क्योंकि रोज तो दिमाग चलेगा नहीं कि वीडियो बना सके और डाल सके। तो लोगों का कनेक्शन इतना बन गया है कि वो मुझे मैसेज करते हैं कि भाई यार कहाँ हो, ठीक तो हो ना, घर में सब कुछ ठीक है ना। तो मतलब वो भी ऐसे कनेक्ट करते हैं कि, और एक तो ऐसे अपना मानते हैं, कमेंट में भी बताते, कमेंट भी ढेर सारे कमेंट करते हैं कि भाई सब कुछ सही, ये चाहिए। उनकी भी डिमांड होती है कि मम्मी को ऐसे करो, दादी को ऐसे करो, दोस्तों के साथ आपको हाँ आइडियाज वो भी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भी, बस वही ऑब्जर्व करने की बात है। तो ऐसे थोड़ा कनेक्शन है, अपनापन सा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि ऑडियंस वाला है ये वाला, अपनापन सा लगता है लोगों के साथ करके। बिल्कुल वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड वैष्णवी, आई नो आपने कहा था कि आपके तो ऑलमोस्ट अब एक स्टाइलिंग वाला Q&A चलता रहता है, लोग आपको पूछते हैं कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं क्या पहनूं, तो ये आपका कनेक्शन आप कुछ और ही लेवल पे पहुंच चुका है। यस, मतलब मेरा ऐसा कनेक्शन है, लोग लाइक ऐसा होता है ना कि को बहुत ज्यादा फ्रेंडली कनेक्शन मेरे फॉलोअर्स के साथ हो गया। मतलब उनको कहीं पे भी जाना है, शादी में जाना है या फिर किसी फंक्शन में जाना है, कुछ लोग तो होते मुझे मेरे गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट करना है, मुझे मेरे वाइफ को साड़ी कैसे ड्रेप करना है तो वो सिखाना है, आप वो वीडियोस बनाओ। तो मतलब ऑडियंस इतने ज्यादा आइडियाज देती है ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है या ये भी टॉपिक हो सकता है कि हम इस पे भी लोगों के साथ शेयर करें, कैसे स्टाइल करें, हैक करें। बट आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे लगता है दोनों के लिए एक थीम है, मतलब ऑलमोस्ट कि रिलेटेबल कंटेंट आप दोनों बनाते हो। जैसे आपका कॉमेडी है पर आपका फैशन है, ये नहीं कि जाके 10 चीजें और खरीदो, घर में जो चीज है उसको 10 तरीके से पहनो, मतलब वो आपका ब्रॉड हमेशा एक विजन रहता है, जो आई थिंक काफी यूजफुल है सबके लिए। दूसरी चीज मुझे लगती है दैट आपका जो ओवरऑल आपने जैसे वैष्णवी अपना एक खुद का ब्रांड भी शुरू किया है, तो इसके पीछे कुछ बताइए, मतलब ये आपका ये बिजनेस में कहाँ से इंटरेस्ट शुरू हुआ या क्या से प्रॉम्प्ट हुआ? एक्चुअली मुझे हमेशा से फैशन में फील्ड में कुछ करने का इंटरेस्ट था,
बट वो सारी चीज़ें हुई नहीं, पता नहीं जो भी सीन रहा है, जो पढ़ाई है वो सारी चीज़ें हो गई है। तो मैं पिछले 6-7 सालों से फैशन स्केचेस बहुत निकालती थी। मेरे खुद के डिज़ाइन 500 से मोर आई हैव, मेरे खुद के फैशन स्केचेस। तो जब मैं स्टार्ट कर स्केचेस बना रही थी तो एक दिन ऐसा रियलाइज हुआ कि ठीक है, मैं भी ट्राई करके देख सकती हूँ कि मे बी जो मैं स्केच बनाती हूँ वो मैं रियल में वीडियो के थ्रू दिखा सकती हूँ क्या। तो उससे मेरी एज अ फैशन कंटेंट क्रिएटर्स की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। देन ऑब्वियसली मुझे खुद का ब्रांड चाहिए था, बट वो बहुत 4-5 सालों के बाद वो सच हुआ। एंड आई एम सो हैप्पी कि लास्ट ईयर मेरा ब्रांड लॉन्च हुआ नवी स्टाइल। एंड फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करूँ जो कि आप एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारे वेज में स्टाइल कर सके, ना ही कि उसको एक ही पर्टिकुलर ओकेजन के लिए या फिर फंक्शन के लिए। तो इस अकॉर्डिंग ऐसे मेरा बेसिकली आपका ब्रांड जो आपने जिस तरीके से कंटेंट शुरू किया था व्हिच वाज अगेन अबाउट रिलेटेबल फैशन, आपका ब्रांड भी उसी डायरेक्शन में है कि उसमें yes, भी yes. बार-बार चीजें यूज हो सकती है, तो सेम थीम आप पकड़ के चल रहे हो। Yes, एंड नवीन, आपका ब्रांड तो अभी है नहीं बट मे बी होगा फ्यूचर में, बट अभी और ब्रांड्स के साथ आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब आपको आजकल ब्रांड्स अप्रोच करते हैं कंटेंट के लिए, ब्रांडेड कंटेंट के लिए, ऑब्वियसली क्रिएटर्स आल्सो हैव टू मेक मनी, तो आपका वो जर्नी कैसा चल रहा है? उसमें कुछ आपको, एंड अगेन फ्रैंक कॉन्वर्सेशन, गुड बैड अगली, बताइए क्या आपका फीडबैक है? ब्रांड के साथ तो मतलब बिल्कुल अच्छा है, जैसे वो भी कुछ कंटेंट देते हैं कि जैसे कुछ कोई सा ब्रांड दे दिया उन्होंने कि भाई इसमें बनाओ, तो कुछ हमारे लिए भी नया होता है। जैसे हमारा कोई फिटनेस नहीं है, कुछ भी हमारा बिल्कुल जॉनर नहीं है, बट वो लोग देंगे तो उसमें अपना बिल्कुल अपना मसाला डाल के, जॉनर बिल्कुल डाल के उनको भी इंटरेस्टिंग लगे। बिल्कुल ऐसे तो नहीं कर सकते ना जैसे टीवी ऐड होते हैं, तो लोग भी कनेक्ट नहीं करेंगे कि यार ये क्या बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे थोड़ा ज्यादा ही हौच पौच सा हो जाएगा कि वो बिल्कुल हो जाता है, मतलब बिल्कुल हाई लेवल वाला हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही वाला। बट हम लोग क्या है, लोगों से भी कनेक्ट करना है, तभी लोग हम पे भरोसा करेंगे ना। एक फॉलो करते हैं, फॉलो इसलिए करते हैं कि भरोसा करते हैं कि धीरे धीरे जो कनेक्शन बना है उसको एकदम से कैसे तोड़ दें। तो वही जैसे हमें कुछ ब्रांड मिला, जैसे कोई मसल बेस का या कोई सा भी ब्रांड मिला, वो हमारे जॉनर से पूरा अलग है। तो वही बात है, जब वो हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट देंगे, उसमें अपना मसाला डालेंगे, लोगों तक वो बात पहुंचेगी और लोग भी बोलेंगे कि हाँ चलो सही है, इसलिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप अपने वे से नहीं बोलेंगे तो फिर वो ऑथेंटिक नहीं लगेगा, राइट? एंड आपको भी मजा नहीं आएगा, फॉलोअर्स को भी मजा नहीं आएगा। सो आई थिंक ब्रांड्स हैव टू बी ओपन माइंडेड, उनको भी आपको, दे शुड लाइक लेट द क्रिएटर्स डिसाइड ना कि कैसे ये मैसेज लैंड करना चाहिए। So that's very interesting कि आपके साथ you already started experimenting there. वैष्णवी एंड नवीन, आप दोनों ने ये बात थोड़ी सी पहले टच करी थी कि यू डोंट नीड अ लॉट, की शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हो। नवीन, मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ आपके सारे कंटेंट बाहर ही होते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि आप कोई भी लोकेशन हो, आप वहां पे कुछ ना कुछ बनाते रहते हो। एंड वैष्णवी, आपका बिकॉज फैशन है, ऑब्वियसली आप घर पे बना रहे हो, तो आप दोनों अपनी तरफ से बताओ। लॉकडाउन भी था, इतने प्रॉब्लम्स थे, तो एंड आपकी जर्नी एक्चुअली इन 2 सालों में ही इतनी एक्सप्लोर हुई है, तो इतनी कंस्ट्रेंट्स के बावजूद भी अगर आप कंटेंट इतना रिलेटेबल बना पा रहे हो, तो टॉप टिप्स अगर मैं पूछूं कि कोई नया क्रिएटर है, सोच रहा है मैं कहां से शुरू करूं, तो क्या बोलोगे उनको? क्या आपकी टिप्स होंगी कंटेंट बनाने के लिए? कोई भी, पहले जिसको भी जाना हो। हाँ, you start. तो क्या कहते हैं, सबसे पहले टिप्स ये है कि ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि ये वीडियो बहुत ज्यादा चलेगी। बिल्कुल एक्सपेक्ट मत, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये वीडियो तो आग लगा देगी, बिल्कुल मजे कर देगी, इंस्टाग्राम पे बवंडर आ जाएगा, लेकिन फिर जब देखते कि अरे यार इसमें तो सबसे ज्यादा मेहनत करी थी, बट ऐसा नहीं हो पाता। तो क्योंकि बट ये है कि हमें अच्छा लगता है, तो सबसे पहले तो इसके लिए करो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वो बिल्कुल दिल से बनाया है। और दूसरा काफी सारे इंस्टाग्राम पे जैसे ट्रेंडिंग साउंड्स आते हैं, साउंड आते हैं, और ऐसा नहीं है कि घर में भी अच्छा कंटेंट बनता है और बाहर भी अच्छा बनता है। जैसे घर में वैष्णवी बहुत बनाती है, मैं बाहर भी बनाता हूँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि घर में बनाओ या बाहर बनाओ, बट ये जहां मन करे वहां बनाओ, बट ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो यार। एक्सपेक्ट करोगे ना तो दिल दुखेगा, फिर खुद ही बैठ जाओगे। तो सबसे बढ़िया बात, बिल्कुल दिल से बनाओ, ट्रेंडिंग साउंड पे बनाओ जो इंस्टाग्राम पे आजकल आ रहे हैं। रील्स इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आया हमारे लिए यार, बिल्कुल ऐसे रीच जो जाएगी ना, तो इसीलिए क्या देखो, we have not trained anything, ये नवीन खुद बोल रहा है, मैं डिस्क्लेमर, बट आई थिंक एक और इंटरेस्टिंग बात है, आजकल जब आप रील्स में जाओगे कंटेंट बनाने, उसमें एक प्लेलिस्ट भी आती है व्हिच इज ट्रेंडिंग ऑन रील्स, तो उसमें एक्चुअली इफ यू डोंट नो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स क्या है, वो आपको डायरेक्टली रील्स कैमरा में भी मिलेंगे। स्मॉल प्लग फ्रॉम माय साइड। बट वैष्णवी, आप बताओ आपका क्या टिप है, सबसे टॉप टिप फॉर अ इमर्जिंग क्रिएटर? कि व्यूज, फॉलोअर्स, लाइक डजंट मैटर।
आप बस अपने दिल से जो हो वो पोस्ट करने का कोशिश करो, और लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आपको पसंद है वो चीज बनाना तो डेफिनेटली आप बनाना उसी चीज को। जरूरी नहीं है आज मैंने जो रील डाली वो मुझे पसंद है तो वो सामने वालों को पसंद आएगी आएगी। ये बात को अगर आप ध्यान देके चलोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। वरना अगर आप सोचोगे कि आप किसी और के लिए कंटेंट नहीं बनाना है, आप उस चीज को एंजॉय करके बनाना है, और ऑब्वियसली उसमें ऑडियंस को क्या पसंद है वो भी उसमें ऐड करना। बट इट्स नॉट लाइक कि नहीं ये अब रील तो चलनी, ये रील पे तो मिलियन व्यूज की गई, इस रील पे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, बिकॉज एवरीबडी हैज डिफरेंट टेस्ट। मुझे जो पसंद है वो सामने वालों को पसंद आएगा नहीं है। और दूसरी चीज, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका जस्ट जो क्रिएटिविटी है, आपका जो भी ऐसा जो चीज में आपको इंटरेस्ट है वो बस आपको पुट करना है। एंड मोबाइल फोन से स्टार्ट करो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम ने सब दिया है। अगर मैं आपको इसी एक और पॉइंट पूछना, क्योंकि कभी हम देखते हैं राइट, ट्रेंड्स बहुत चलते हैं रील्स पे स्पेशली, एंड एकदम से वो ट्रेंड है, आपको लगता है कि यार सभी यही बना रहे हैं, सभी ये बना रहे हैं, मुझे बनाना चाहिए, तो उसको आप कैसे क्रैक करते हो? क्योंकि हाउ डू यू स्टे कि मैं ये इसको अपना कैसे बनाऊं, उसके बारे में कुछ बताइए कि एक ट्रेंड को आप अपनाएं कैसे कि आप अपने आप को ना खोएं, बट फिर ट्रेंड अगर चल रहा है तो उसमें भी आप यूटिलाइज करें। कोई है इसमें आपका कोई टिप्स? जैसे कि अगर ट्रेंड आता है, मानो अब जो नवीन को तो सब कुछ आता है, एक्टिंग, डांस, एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग ऑब्वियसली। तो अब मेरा ऐसा होता है कि ओके मैं थोड़ा बहुत डांस कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ट्रांजिशन हो, कुछ लिपसिंग हो, उसके साथ फैशन, यानी कि कोई मैं म्यूजिक गाना गा रही हूँ और उसके साथ फैशन चेंज हो रहा है। तो मैं ऐसा आइडिया लगाती हूँ, ठीक है, कि ट्रेंड भी फॉलो हो, ट्रेंड म्यूजिक भी फॉलो हो, ट्रेंडिंग, थोड़ा सा उसमें जो डांस के स्टेप जो फेमस है, ये लोग नए नए डांस स्टेप बनाते हैं, वो स्टेप, एंड उसके साथ फैशन। तो मेरा यही होता है कि बेसिकली आप एक्सपेरिमेंट करते हो, व्हिच इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कि आप ट्राई करो, आता है नहीं आता है थोड़ा सा ट्राई करो, कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा, पर एटलीस्ट ट्राई करो। डेफिनेटली। नवीन, आपका क्या टिप है इसके ऊपर कि कोई ट्रेंड को अपना कैसे बनाओ? ऐसे कि ट्रेंड का, जैसे ट्रेंड पे कोई ट्रेंड आ गया, उस पे तो जैसे हजारों वीडियोस बन जाएगी, लेकिन वही बात है ना, हजारों बन जाएगी, लेकिन वही है कि अगर आपको आगे जाना है तो थोड़ा सा अलग दिखना पड़ेगा। तो उसमें अपना जॉनर तो जरूर रखो, जॉनर जिससे लोग, जिससे तुम्हें फॉलो करते हैं, जिससे तुम्हें कनेक्ट होते हैं, वो जॉनर लेके कुछ क्रिएटिव सा दिखा दो, तो इससे लोगों को भी पसंद आएगा, थोड़ा अलग भी हो जाएगा। तो वही बात, इसलिए थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा सा अलग करके चलना पड़ेगा, तभी अलग दिखेंगे। नहीं बिल्कुल। कोई एग्जांपल है आपका कुछ जो आपको माइंड में आया कि आपने कुछ ट्रेंड को अपनी तरफ से किया? मतलब अभी मैंने रिसेंटली कच्चा बादाम पे करा, और एक आईफोन लॉक स्क्रीन वाला करा था मैंने, आईफोन लॉक स्क्रीन वाला करा था, कच्चा बादाम वाला नहीं बोलता अभी, बट आईफोन लॉक स्क्रीन वाला करा था। उसमें मम्मी के साथ करा था कि आईफोन लॉक स्क्रीन है तो उस पे सब लोग एकदम से पॉज होते, फिर एकदम से चलने लगते हैं, बट मैंने उसमें करा कि पॉज तो है, लेकिन उस पे क्रश का जो मैसेज आया, फिर मम्मी ने जो मुझे धोया, नोटिफिकेशन भी ऑफ कर लो यार। वेरी नाइस। सो आई थिंक बेसिक चीज है कि आपने अपना जो कोर है वो नहीं छोड़ा, कि अगर आपका कॉमेडी है, आपका फैशन है, तो वो नहीं छोड़ो, क्योंकि ये नहीं कि ट्रेंड्स को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि यार आई एम नॉट अ डांसर, अब मैं क्या करूंगी रील्स पे। दैट्स नॉट द, आई मीन द अप्रोच इज नॉट दैट। अप्रोच इज कि आपको डांसर होने की जरूरत नहीं है, आप स्टिल कुछ कर सकते हो इन योर ओन जॉनर। सो आई थिंक दैट्स वेरी एक्साइटिंग। एंड एज अ, इफ देयर इज एनी न्यू क्रिएटर जो सुन रहे हैं, पर आप देखिए इनके एग्जांपल्स, आई थिंक ट्रेंड को अपनाना इज द ट्रिक, यू नो, हाउ डू यू make it work for you rather than you working for it. I think वो है कि आप ट्रेंड को अपने लिए कैसे काम कराओ। तो आई नो हमारा टाइम थोड़ा कम है, ऑडियंस के क्वेश्चंस भी लेने हैं। एक क्वेश्चन तो मैं छोड़ूंगी नहीं, which is, अगर मैं बोलूं पूरी, you know, all of the Instagram universe available है आपके लिए, आपका ड्रीम कोलैब किसके साथ होगा? कोई ब्रांड, कोई पर्सन, कोई क्रिकेटर, कोई हीरो, कोई एक्ट्रेस, what would be the dream collab? वैष्णवी, do you have anybody in mind? मुझे दीपिका पादुकोण मैम के साथ बस उनको मिलना है, बस और अगर किस्मत में हो तो उनके साथ बस एक स्टाइलिंग वीडियो करनी है, या फिर छोटी सी एक वीडियो करनी है, बाकी कुछ नहीं। आई रियली अडोर उनकी जो स्टाइल है, उनकी जो अदा है, ओ माय गॉड। Okay, awesome. Deepika, hopefully if you, we'll figure out a way कि कैसे, you know, we can get this to her team at least. नवीन, आपका ड्रीम कोलैब? मेरे लिए तो ड्रीम कोलैब नेटफ्लिक्स है, बिल्कुल। मतलब नेटफ्लिक्स तो मतलब कि थोड़ा सा ना मुझे भी उसमें मतलब ऐसा लगता है, कनेक्शन सा लगता है बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसे प्ले कर सकता हूँ, मैं भी इसमें अपना बिल्कुल 100% दे सकता हूँ, बिल्कुल। मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स मुझे मतलब ड्रीम कोलैब है, उसके लिए बोल नहीं सकता, बट मतलब इतना दिल से आ रहा है, बात ही नहीं हो पा रही है। और नो, इट्स अमेजिंग, एंड आई थिंक
it's so refreshing जब हम young creators से बात करें. I think I can speak for myself. I'm definitely on the other side of 25 by a margin. So it's very nice क्योंकि आपका इतना passion है, इतना authenticity है, and I think sometimes creator की journey में काफी tiring हो जाता है, right? And you forget कि आपने शुरू क्यों किया. तो I think just seeing this energy and seeing कि हर चीज के लिए एक solve है, हर चीज के लिए एक positivity है, कुछ ना कुछ ढूंढ के आप अपना तरीके से आप अपने आप को नहीं खो रहे हो अभी, which I think is so positive and so nice to hear. मेरा ड्रीम कोलैब इफ आई आस्क आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इज आप दोनों कुछ फैशन कॉमेडी का कोलैब करो, सो मे बी वी कैन सी दैट. डेफिनेटली मे बी दैट्स अ ग्रेट आउटकम कि वी हैव फन कोलैब विद मैं एक चीज बोलना चाहूंगी अभी है पैनल में. मैं इसने जब स्टार्ट किया था ना, मैं इसको तब से फॉलो करके आई हूँ. आई नो दैट इसने पहला टिकटॉक अकाउंट भी निकाला था, फिर दूसरा निकाला था, देन इंस्टा. आई नो उसकी पूरी जर्नी, मेरे पूरे घर में इसको सब लोग जानते हैं. और जब ये पैनल में मिला, आई वाज लाइक ओ माय गॉड. मैं पहले थी कि यार मतलब आई एम सो हैप्पी, मैं बता नहीं सकती थी. मैंने आपको भी बोला था कि ये आ रहा है पैनल में. I think he's blushing. I think he's blushing already. लड़की तारीफ कर रही है ना, तो इसलिए कंटेंट इतना माइंड ब्लोइंग है ना. मतलब उसकी नानी जबरदस्त है, मतलब दादी. I think that's the best part. And I think creators have to support each other, right? आपकी community है. So giving each other a boost, आप दोनों collaborate करना या supporting each other, that's always there. And I always find it so nice कि सारे creators, emerging creators के लिए हमेशा tips और tricks लाते हैं, because आप जा चुके हो उस journey से, तो आपको पता है कि उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, and how to motivate yourself. So awesome. Now I'm going to bring Nandini back. I think हमारे कुछ questions हैं अगर audience से, we'd love to take them for these creators. So Nandini, if you want to join us. Hi guys, it was so amazing. I think I am one big Reel fan, and it was so insightful to talk to the three of you. It was totally amazing. I think the blend that you bring in, अलग-अलग तरीके के content जो आप बना रहे हैं, that's very very commendable. So great work. I'll quickly take 2-3 questions. Fine. Okay, so एक question था इसमें about graphic and how can you take it right. I'm showing it on stage. So the question is, I make blog posts on Instagram, graphic created topics, not showing my face, but my page is not growing. It's really motivating. How to grow organically? Okay, is this I can kick off, but I'd love कि हमारे creators actually इस पे बात करें. So basically I'm not sure, मैंने इनका account तो हमें पता नहीं है, but assuming कि right now ये content बना रहे हैं which is probably not too much of video, maybe more graphics, more photos, and अभी उसको लग रहा है कि growth नहीं हो रही है. So I think एक चीज तो मैं सबसे पहले बोलूंगी कि I hear quite often कि देखो Instagram suddenly अब short form video कर रहा है. I think ये थोड़ा सा wrong framing है. I think Instagram या कोई भी platform नहीं कर रहा है. Actually audiences चाह रही हैं short form video, and that is the reality, right? So it's not like platform ने सुबह उठ के decide किया कि चलो आज से मैं short form video बनाएंगे. It's basically वो देख रहे हैं इतने time से कि audiences are moving towards short form video. वो बहुत ही entertaining लगता है. Consumption is easy. India में तो आपको पता ही है with mobile, internet and the way video is growing. There is a huge push towards short form जो पहले से चल रहा था. So I think अगर आपको ऑडियंस ग्रो करनी है, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस किस तरफ जाती है. और अगर आपकी ऑडियंस जा रही है शॉर्ट फॉर्म वीडियो की तरफ, तो उसको एक्सपेरिमेंट करना, उसमें अपना आइडिया लाना, आई थिंक दैट इज द वन डायरेक्शन. आई थिंक ये नहीं हो सकता कि आपकी ऑडियंस कहीं और जा रही है और आप बस कह रहे हो कि नहीं मुझे बस इसी तरह का कंटेंट बनाना है. द मेन थिंग आई वांट टू से इज कि डोंट गेट लिमिटेड बाय थिंकिंग कि शॉर्ट फॉर्म वीडियो सिर्फ एक तरीके का बनता है. बहुत टाइप्स के होते हैं, राइट? आप इसी पैनल में देख रहे हैं डाइवर्सिटी कितनी है. कॉमेडी है, फैशन है, लोग इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट फॉर्म वीडियो बना रहे हैं, लोग दे जस्ट डूइंग पीस टू कैमरा, डायरेक्टली बात कर रहे हैं. तो इट्स रियली अप टू यू. पर्सनली अगर मैं किसी को फॉलो करती हूँ, आई एक्चुअली लाइक टू फॉलो द पर्सन. मतलब आप कंटेंट नहीं फॉलो करते, आप क्रिएटर को फॉलो करते हो. तो इसीलिए वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज इंपॉर्टेंट. लाइक शोइंग योर फेस आई थिंक ऑलवेज हेल्प्स टू बिल्ड दैट कम्युनिटी, वरना इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता है. सो आई वुड एनकरेज कि आप एक्सपेरिमेंट करो, देखो आपकी ऑडियंस किस तरफ जा रही है, देन ट्राई एंड अडैप्ट फ्रॉम देयर. बट वैष्णवी, नवीन, आपके पास कुछ ऐड करने को है कि अगर ग्रो करना है तो क्या आपके सजेशंस हैं? बेसिकली जो इंटरेक्शन फेस टू फेस होता है ना, वो अलग ही होता है. मतलब वो बीट ही नहीं कर सकता किसी भी चीज को, बिकॉज ऑडियंस बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाती है. पता नहीं उनको अपना सा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ हमें उस चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी वो परचेज करते हैं क्योंकि हम ऐसे वो शोकेस ही कर देते हैं वो सारी चीजें. एंड अब तो इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया कि रील्स एंड ये सारी चीजें, तो
आई गेस कि जो पर्सनालिटी जो दिखती है वो उससे लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और उसको ज्यादा रिकनेक्ट कर देते हैं लोग. Very true. Yeah. याद तो जैसे निहारिका ने बोला कि वही बात है कि जो दिखता है वही बिकता है, तो इसलिए जो दिखता है बिकता है, तो वही ऑडियंस क्या चाहती है आपकी, शिवानी गावड़े, आपकी जो ऑडियंस चाहती है उनसे पूछो, जितने भी लोग देख रहे हैं तो उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं, फिर उसके हिसाब से बनाओगे तो खुद भी पेज ग्रो होगा. ऐसे नहीं कि अपने लिए ही डाल दो, थोड़ा उनसे भी पूछो अगर ग्रो करना है तो वो क्या चाहते हैं, पब्लिक क्या चाहती है. तो यही. एंड स्टोरीज में आजकल आप क्वेश्चंस पोल सब डाल सकते हो. तो अगर आपको अपनी खुद की ऑडियंस को पोल करना है, क्वेश्चंस करना है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वे कि आप पूछो कि एंड आल्सो लुक एट क्रिएटर्स जो आपको इंस्पायर करते हैं. मतलब दैट्स वेरी गुड टू आल्सो समटाइम्स कभी-कभी आप खुद ही समझ नहीं आता क्या बनाते हैं, तो स्पेंड सम टाइम, टेक अ ब्रेक. We've launched a feature also called Take a Break that I hope you can switch off, see what's happening outside, and then come back inspired. Great. I think very, very insightful thing. And I am going to take a break after this, after I take a break from the sessions for sure. So I just take one last question, which I think even I would want to ask Naveen and Vaishnavi. Like, from where, kahan se aati hai the energy and the motivation to, रोज उठ के you create content? How is that done? Everybody wants to know. Yes, Vaishnavi, please go ahead. अगर आपके पास कोई सपने हो या फिर आपके पास कुछ ऐसा हो ना कि आपको वो अचीव करना है ना, तो आपकी नींद चैन सब उड़ जाता है और आप वो चीज के पीछे दौड़ते रहते हो. एंड मैंने लिटरली यही किया है. मतलब ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई भी मैनेज किया, ये भी मैनेज किया. लॉकडाउन होने के कारण भी मेरा फुल टाइम कॉलेज था एंड इसके साथ भी मैंने ये इंस्टाग्राम का जो फैशन एंड कंटेंट क्रिएट वो सब कुछ चालू रखा था. तो मुझे यही है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा जुनून है कि वो चीज चाहिए ही चाहिए या फिर अचीव करनी है, तो वो हो जाता है. तो आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा आपके वर्क के लिए, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है. इजी सक्सेस इज नॉट अ शॉर्ट फॉर्म कि अगर आप मिल जाएगा आपको 1 दिन में 2 दिन में, आपको उस चीज के पीछे दौड़ना पड़ेगा. राइट, वेरी राइट. नवीन, आपके क्या इनपुट है इस पर? हाँ, जुनून तो बिल्कुल होना चाहिए, बिना जुनून के तो काम ही नहीं चलेगा. और दूसरे ना जो सराउंडिंग होनी चाहिए ना, वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां से ऑब्जर्वेशन जो मिलती है, जो लोग, क्योंकि आसपास के लोग नेगेटिव होंगे तो फिर हम लोग ही ज्यादा नहीं कर पाएंगे ना, हम ही डिमोटिवेट होंगे. वो लोग अगर आसपास के 4 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन वो अच्छे हैं ना, तो उनसे थोड़ी मोटिवेशन, थोड़ा दिमाग चलेगा, ऑब्जर्वेशन लेके लोगों को. और सबसे बड़ी बात तो यार, घूमो जितना हो सके घूमो, जितना लोगों को देखोगे, जितना लोगों से मिलोगे, उतना ज्यादा जानोगे चीजों के बारे में, और खुद भी मन करेगा कुछ करने का. तो वहीं से जुनून आएगा यार, लोगों को देख देख के, लोगों से इंस्पायर होके. तो बस यही है. और एक लास्ट चीज है, हाँ जी, प्लीज. खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, इससे आप बहुत आगे जाओगे. किसी भी कोई भी पेज हो, कोई भी क्रिएटर, कुछ भी हो, बस हमारे पास हम जितना क्रिएटिविटी दे सकते हैं उतना ट्राई टू पुट आउटसाइड. नहीं कि किसी और क्रिएटर के साथ या फिर ऐसे जो भी चीज है. ऑब्वियसली लोग वही कंपैरिजन पार्ट आ ही जाता है, और वही लोगों को ऐसा होता है कि सपने पूरे करने से रोकता है कि व्हाट इफ मैंने ये किया वो किया. तो यही एक पॉइंट है. I think these were very, very, motivating words, I would say, that you guys have put in. बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके. एंड आई एम श्योर कि हमें बहुत सारे क्रिएटर्स, राइजिंग क्रिएटर्स मिले होंगे इस चैट में एंड इस सेशन में. रियली रियली अमेजिंग टॉकिंग टू the three of you. And I hope that like the both of you reach even greater heights with Instagram for sure. And it was very, very insightful, Niharika. Thank you for telling us. Yeah, no, thank you for having us. And guys, please follow Bihari Ladka Journey with Fashion with underscores. Definitely. I think वो link भी है, तो please in case you don't follow them, अगर आपको ये positivity continue करनी है, then find it on their accounts. Right. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you, everyone. You can share your experiences. Tag Instagram, tag us, tag Bihari Ladka, tag Vaishnavi Journey Towards Fashion, and put in your experiences, and we'd love to hear from you. So great conversation. Thank you so much.